السلام علیکم، میں ہوں طارق مسعود علیانی۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جارحیت 14ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ نئے رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ علی خامنائی کے دبنگ بیان کے بعد تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاسدارانہ انقلاب کے تابڑ توڑ حملوں نے دشمن کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ایرانی عسکری قوت نے اسرائیل پر بھرپور بمباری کی ہے۔ تل ابیب کے مرکز اور امریکی فوج کے اڈوں کو تاک کر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے بھی تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں پر بارود برسایا۔ ایران کی میزائلوں کی الغا، امریکہ اور اسرائیل میں چیخ و پکار۔ پاسداران انقلاب کے حملوں سے تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بجتے رہے۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی، لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ شمالی اسرائیل میں عمارت پر میزائل لگنے سے 19 افراد زخمی ہوئے۔ ادھر ایران نے امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر میزائل برسا دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں سے ایئر کرافٹ کیریئر کو نقصان پہنچا۔ بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں ڈرون سے حملے کیے گئے۔ عراق میں فرانس کے فوجی اڈے پر ڈرون حملے سے فرانس کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ فرانس نے سرکاری سطح پر تصدیق کی ہے کہ حملے میں متعدد فرانسیسی فوجی زخمی ہوئے۔ دوسری طرف نام نہاد ریاست اسرائیل نے ایران اور لبنان پر وسیع پیمانے پر نئے حملے کیے۔ رات گئے تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اور مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں ورنہ حملوں کے لیے تیار رہیں۔ ہم اپنے شہداء کا خصوصاً مناب اسکول کے شہداء کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ دشمن کو ایرانیوں کے خون کا حساب دینا پڑے گا۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اپنے پہلے آڈیو پیغام میں واضح کر دیا کہ آبنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا۔ ایرانی رہنماؤں اور عوام کے درمیان رابطہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ میرا عہدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ عوام یکجہتی کے ساتھ دشمن کو شکست دیں گے۔ Enemies were trying hard to hit the people before the expert council can find a supreme leader. Now I'm here. We are forced to continue the interests and the bases of the enemies, but we still have good relationships and friendship with the neighboring countries. Those who killed our children will pay the price. My advice is to stop these bases from operating. We will never retreat. We will revenge the blood of our martyrs, not only for the late Supreme Leader, but also for the blood, particularly the blood of children and women. That's why the crimes of the enemies in Minab school and some other places for the enemies, and they will pay the price. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ بندی کے لیے 3 شرائط رکھ دی۔ پاسداران انقلاب نے بڑی دھمکی بھی دے دی۔ پینٹاگن بھی جنگی جہاز آبنائے ہرمز بھیجنے سے کترانے لگا۔ جنگی ماحول میں تیزی سے بدلتی صورتحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشان کن ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں، نقصانات کا ہرجانہ دیا جائے، مستقبل میں ایران کے خلاف جارحیت نہیں ہوگی۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی سے متعلق 3 شرائط رکھ دیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، عالمی طاقتیں اس کی ضمانت دیں تو فوری جنگ روک سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو جواب بھی منہ توڑ دیا جائے گا۔ حملے کی صورت میں علاقائی ممالک کی بندرگاہوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تمام صورتحال پر پینٹاگون میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں پینٹاگون کا کہنا تھا کہ اس وقت آبنائے ہرمز میں جنگی جہاز بھیجنا انتہائی خطرناک ہے۔ ایران کے حملوں سے امریکہ کے خلیجی ممالک میں قائم اڈوں پر بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ جنگ میں ابھی تک امریکہ 4 مہنگے طیارے بھی گنوا چکا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ طیارے حادثاتی طور پر گرے، جبکہ ایران نے دعویٰ کیا کہ لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والا مہنگا طیارہ عراقی ملیشیا نے گرایا ہے۔ امریکی فوجی تنصیبات کے نقصانات سے متعلق اپڈیٹ جانتے ہیں۔ امریکہ کو ایران کے خلاف جارحیت میں نقصان پر نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اربوں ڈالر پھونکنے کے بعد بھی امریکہ اپنے جنگی ساز و سامان کی حفاظت سے معذور ہے۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ عراقی مزاحمتی فورس نے امریکی طیارہ مار گرایا۔ ایرانی فوج کے مطابق طیارے میں سوار تمام اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق KC-135 ٹینکر طیارہ آپریشن کے دوران حادثے کا شکار ہو کر گرا اور تباہ ہو گیا۔
हादसा फ्रेंडली एयर स्पेस में पेश आया और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि तैयारा गिरना महज एक हादसा नहीं, तैयारा किसी हमले का शिकार नहीं हुआ। इससे कबल भी 3 अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारे मुबैना फ्रेंडली फायर में तबाह हो चुके हैं। फिजाई नुकसान के साथ साथ अमरीका को खलीज में कायम फौजी अड्डों पर भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ईरान के हमलों में अमरीकी फौजी अड्डों पर एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम, ड्रोन रखने के बड़े बड़े लाट, ड्रोन की मरम्मत के मराकज़, सपोर्ट आलात और फ्यूल टैंक तसलसल के साथ निशाना बन रहे हैं। और सिर्फ बयानबाजियां नहीं, अब ईरान के खिलाफ जारिहत में अमरीकी नुकसान की सैटेलाइट भी तस्दीक कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट में वाज़ेह बताया गया है कि खित्ते में कम अज़ कम 17 अमरीकी मकामात मुतासर हुए हैं, जिनमें 11 फौजी अड्डे या फौजी तनसीबात भी शामिल हैं। सऊदी अरब में वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस और कतर का अल उबैदा एयरबेस हमलों से मुतासर हुए हैं। इसी तरह से कुवैत के अली अल सलाम एयरबेस और कैम्प बोरिंग को भी निशाना बनाया गया है। बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को भी शदीद नुकसान हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात के अल ज़फ़रा एयरबेस और जबल अली पोर्ट भी हमलों की जद में आए। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा हैं। ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया, बताया कि शहीद आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया की वफ़ात की खबरें गलत हैं। 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया, बेटे, बहू, नवासी और अहलिया की शहादत की खबर सामने आई थी। और अब आपको बताएं कि ईरानी हमलों ने इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम का भट्टा बिठाकर रख दिया है। नाम निहाद सेहूनी रियासत की हिफाजत के लिए अमरीका ने अपना इंतहाई महंगा थार्ड नामी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इसराइल पहुंचा दिया है। ये निज़ाम अमरीका ने जनूबी कोरिया में शुमाली कोरिया के हमलों से बचने के लिए नस्ब कर रखा था, मगर अब ज़रूरत पड़ने पर इसे इसराइल मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी कोरिया के मीडिया के मुताबिक इस पेचीदा निज़ाम को मुताबिक ट्रक्स पर लाद कर मुंतकिल किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने सियोल के जनूब में अमरीका के औसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। मैं बात करूं तो उसमें काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। इसके अलावा कंधार में तरावो दहशतगर्द कैंपस जो है, जहां पर फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द मौजूद थे, उनका ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, उसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा कंधार में भी एक बहुत अहम कार्रवाई की गई है और कंधार में जो एयरफील्ड की जो ऑयल स्टोरेज साइट्स है और उससे मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तबाह किया गया है। उसका जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर था कंधार एयरपोर्ट के ऊपर दहशतगर्दों का, जहाँ पर ऑयल स्टोर किया जाता था, उसको तबाह किया गया है। और इसके अलावा एक और फिजाई हमले के दौरान सूबा पख्तिया में शरनाओ दादी दहशतगर्द कैंप है, उसको भी निशाना बनाया गया और उस कैंप के हवाले से ये पता चला है कि यहाँ पर दहशतगर्द जो है बड़ी तादाद में मौजूद होते थे। ये भी उनका एक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इन कार्रवाइयों के अंदर मजबूरी तौर पर ऑपरेशन ग़ज़ब के तहत जो की जा रही है, इसमें न सिर्फ खान तालिबान रजीम का जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको हिट किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो फितनल ख्वारिज के ठिकाने, ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह या पनागाहें मौजूद थी, उनको भी भरपूर अंदाज के अंदर और पूरी पूरी के साथ सलमान, इस हवाले से आप आगाह करें, हमारे साथ ही रहिएगा, इसी से मुतालिक बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अब देखिएगा, यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबियां हैं जो कि हमारे हिस्से में आ रही हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि बार बार बयान भी दिया जा रहा है कि जो सिर्फ वैसी जगहें जहाँ से हमले होते थे, वो सरजमीन जो अटैक के लिए इस्तेमाल होती थी, सिर्फ उसको निशाना बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 12 और 13 की रात को मार्च की ये पाकिस्तान ने स्ट्राइक की हैं और हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं। मुख्तलिफ जो दहशतगर्दों के कैंप्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इसी तरीके से उनके जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है अफगानिस्तान में, उसके ऊपर ये हमले किए गए हैं, जिसमें काबुल में 313 कोर हेडक्वार्टर, उसको उसके जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ उसके जो एमुनेशन डिपो था उसको हमला किया गया है, उसको तबाह किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जो जगह है तरावो, ये एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था कंधार के अंदर, जहां मुस्तकिल माजी के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमले करते रहे, हर तरीके से यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती थी, यहाँ हथियार भी दिए जाते थे, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने न्यूट्रलाइज किया है। इसी तरीके से पक्तिया जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी लगता है, शेर-ए-नौ टेररिस्ट कैंप था यहाँ, इसको निशाना बनाया गया है। और फिर कंधार के अंदर भी इसी तरीके से जो उनकी तेल की स्टोरेज थी उसको निशाना बनाया गया। इसमें इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमने अपना एक पैगाम बड़ा वाज़ेह दिया है कि हम किसी भी किस्म की अभी निगोसिएशन के अंदर जो
وہ نہیں पड़ेंगे। दूसरा, अब हम कोई भी वफ्द नहीं भेजेंगे जिस तरह से माजी के अंदर हम वफ्द भेजते रहे, वफूद भेजते रहे, लोगों से रब्ता करते रहे कि चलें जी कोई बात नहीं, हम कोई बातचीत के जरिए काम कर लेंगे। लेकिन लगता यह है कि ये जो था वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था और हमने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान रेस्ट्रेंट शो करता रहा, लेकिन हमने ये देखा कि पहले भी अक्टूबर के अंदर पिछले साल उन्होंने हमला किया और फिर हमने उस हमले के ऊपर जवाब दिया, लेकिन फिर हमारे कुछ दोस्त भाई ममालिक मिल गए, उन्होंने कहा कि चले आप इसके ऊपर कोई इनके साथ बातचीत करके देख लें, शायद इनके दिमाग दुरुस्त हो जाए। लेकिन इनके दिमाग दुरुस्त होने वाले नहीं थे। फिर हमने नेगोशिएशन में वहाँ बिल्कुल हमने देखा कि नेगोशिएशन बार बार की भी गई, फिर नेगोशिएशन को तर्क करके यही रास्ता था जो इख्तियार किया गया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब साथ ही रहेगा, ब्रिगेडियर राइट हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हारिस साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अहम कार्रवाइयाँ 4 ठिकानों और तनसीबात को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ये जो खबर है कि कंधार में तरावो दहशतगर्द कैंप्स को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया, और भी बड़े सारे हम देख रहे हैं किस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं। बताइएगा इस ऑपरेशन को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखें, ये ऑपरेशन में गज़ल हक है, जिसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान ने अब ऐसे हार्ड से फैसला किया हुआ है कि अब हम इस ऑपरेशन को लॉजिकल कंक्लूजन पर लेके जाएं। हमने इनकी कमर तोड़ दी है, इसलिए कि जो हमने बेदराम एयरफील्ड पर बेस पर जो एयर स्ट्राइक की हैं उसमें हमने इतना नुकसान पहुंचाया है कि इनकी बिल्कुल कमर टूट सकती है। 100 से ज़्यादा इनके ड्रोन खड़े थे वो हमने तबाह कर दिए, इनके हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, लेटेस्ट वहाँ पर इनकी जो 50-60 हज़ार जो राइफल पड़ी थी मैपिंग तोड़ दिए थे वो उड़ा खत्म कर दिए, एमुनिशन डब उड़ा दिए, बख्तन पर गाड़ियाँ इनकी खत्म कर दी हैं और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। अब इनके पास बहुत कम, इसके बाद भी हमने इनके फिर दोबारा हमने चाइनीज बेस है इनका वहाँ पर, उसके अंदर हमने इनके काफ़ी नुकसान पहुँचाया। एमुनिशन डम, ट्रेनिंग कैंप, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप, इनके ब्रिजेस, इनको निजात रहे वो हमने तबाह करके रखी है। इस वक्त ये बिल्कुल कमर टूटी हुई है और ये आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद सफेद झंडे खड़े करेंगे और वही कहेंगे हमारी मजिस्ट्रेट जाके भी खुदा के लिए पाकिस्तान को मजिस्ट्रेट अभी बल्कि ये अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट एक्टिंग। हमने कहा कि जब तक ये वेरीफाइबल हमें कंफर्म नहीं होता कि इन्होंने वाकई उनको पीछे हट दिया, टेररिज्म बंद कर दी है और इसके साथ साथ इन्होंने इन राइटिंग देने की बात की है और साथ ये भी मिलिट्री से काउंटर साइन भी कराएंगे, बॉर्डर मैकेनिज्म हम बनाएंगे मॉनिटरिंग का, उसके बाद हम करेंगे। बिकॉज ये हर दफा टाइम गेन करते हैं, जब बाद में ये टाइम करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीकूप करते हैं और फिर ये दोबारा शुरू कर देते हैं। और इसलिए हमने अपने देखा कि हमने 190 के करीब पोस्टें तबाह कर दी हैं, 32 पोस्टों में कब्जा कर दिए, 180 टैंक, बख्तबंद गाड़ियाँ, गन पोजीशन वो तबाह किए हैं उनके, तो 450 करीब हमने दहशतगर्दों को मार दिए, 550 जख्मी थे। इनकी बिल्कुल इस वक्त बुरा हाल होगा और इंटेलिजेंस ऑपरेशन हमारे के अंदर, तो ये अब हमने साइमल्टेनियसली किया है। ये हार्ड स्टेट, अब आई थिंक वी हैव टू फिनिश द ऑपरेशन लॉजिकल एंड पे जाके, ताकि अब जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उससे मुतालिक तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक अहम कामयाबियां पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।